ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اشرفی محمدی کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ تبرک ہے وہ وہاں سے لایا جا رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر نعت نبی سنیں اور ثواب کمائیں، اس کے بعد تبرک کھائیں، پھر اپنے گھروں کو جائیں۔ حضرات محترم دیکھیں، ایک شعر دیکھ لیں کہ کیا ہے، کیا پوچھتے ہو شبیر نے کیا کیا؟ تو لوگ بولے بابو کیوں اتنا وہ لڑکا اداس کیوں بیٹھا ہے؟ کوئی بات ہے؟ اگر تجھے چاہیے تو 10 روپیہ لے اور پھر مجھے دے کے پھر سبحان اللہ بول، مگر بولنا ہے تجھے۔ کیا پوچھتے ہو شبیر نے کیا کیا ہے؟ لگے اسلام کو اپنا لہو پلا دیا ہے۔ کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو شبیر نے کیا کیا ہے؟ لگے اسلام کو اپنا لہو پلا دیا ہے۔ اور کیا اب لگے اسلام کو اپنا لہو پلا دیا ہے۔ اور کیا خوب ہے، کیا خوب ہے انداز انتقام شبیر، لفظ یزید کو گالی سے بدتر بنا دیا ہے۔ لفظ یزید کو گالی سے بدتر بنا دیا ہے۔ لفظ یزید کو گالی سے بدتر بنا دیا ہے۔ لفظ یزید کو گالی سے بدتر بنا دیا ہے۔ دیکھیں، میں یہاں سے کھڑے کھڑے سوچ رہا تھا کہ 2-4 لوگ جیب میں ہاتھ لگائے ہیں تو وہ شاید باہر نکالیں گے، مگر میری بات جو ہے کہ غلط ہو گئی۔ وہ ٹھنڈی کی وجہ سے شاید جیب میں ہاتھ رکھے تھے۔ بھائی شب اختر آپ سے ملاقات کریں گے۔ ایک شعر اور سن لے کہ کیا ہے نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں حسین، کیا ہے نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں حسین۔ ہر حال میں سجدہ بچا رہے ہیں حسین، ہر حال میں سجدہ بچا رہے ہیں حسین۔ اور خلبلی مچی ہے شام کے دربار میں، خلبلی مچی ہے شام کے دربار میں، جب سے خبر لگی ہے نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، جب سے خبر لگی ہے نیزے پہ آ رہے ہیں حسین۔ اللہ ایسے مستانوں کو سلامت رکھے اور 2-4 مستان ایسے میرے گاؤں میں بھی پیدا ہو جائیں، اس لیے کہ میرا روز روز یہاں آنا جانا مشکل ہے۔ نعرہ لگائیں اور بھائی بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، نعرہ تقدیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تو لگ گیا، میں آپ کو صرف پیسہ دکھا سکتا ہوں، دے نہیں سکتا ہوں، بہت دور تک جانا ہے۔ بھائی شب اختر آ رہے ہیں، میں ایک شعر پڑھ لوں کہ چہرے پہ ملکے روضے سرکار کا نمک، کچھ اور بڑھ گیا ہے اس گنہگار کا نمک۔ ہر زخم پہ بلال یہ کہتے تھے جھوم کر، یہ زخم تو ہے لذت اظہار کا نمک۔ اور میدان جنگ بدر میں سب دیکھ کے حیران تھے، میدان جنگ بدر میں سب کو یہ ماننا پڑا، لکڑی اتار دیتی ہے تلوار کا۔ بھٹکنے والوں تم راہ پارسائی دیکھو۔ دیکھیں، آپ لوگ اداس بیٹھیں گے، میں کچھ کہہ دوں گا، اس لیے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بیچارہ مایوس ہو کر کے بھی اپنی بیوی کے قدم کو چوم رہا تھا۔ میں نے پوچھا بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماں کے قدموں کو نیچے جنت ہے۔ کہا میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ ان کے بھی قدموں کے نیچے کسی نہ کسی کی جنت تو ہے ہی۔ میرے بچوں کی جنت ہے، ان کے کہنے کا مقصد، وہ بچہ تو گال پہ ہاتھ رکھ کے کب سے بیٹھا، میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ کس مصیبت میں بیٹھا ہے۔ میں تو دعا بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی شادی ہو جائے، اس لیے کہ عمر بھی نہیں ہے۔ بھٹکنے والوں تم راہ پارسائی دیکھو، دائیوں میں ممتاز حلیمہ دائی دیکھو، یہ بھی ہے وصف مصطفیٰ کا صدقہ، شاعر کی خوب ہو رہی کمائی دیکھو۔ اچھا، شاعر لوگ بڑے کمال کے ہوتے ہیں، اللہ ان کے جو ہے کہ مال میں اور زیادہ برکت دے، مگر ایک بات ہے، ناظم کو 10 روپیہ نہیں دیتے کوئی شاعر۔ ہمارے اسلاف کا شجرہ جا کے کربلا سے ملتا ہے، سبحان اللہ کا یہاں سے ملتا ہے، اس لیے کہ دیکھیں آپ دوسرا لے کے آئے ہیں، یہ لڑکا پھر تیار ہے، میں نہیں جانتا ہوں پھر کیا ہونے والا ہے۔
अल्लाह करे के लिए वो सही सलामत रहे। भाई तौसीफ रजा बानवी दोबारा आपसे मुलाकात करने जाएंगे बस 10 मिनट के लिए। अल्लाह का शुक्र। आप देखें भाई यहाँ इलियास मरकजी साहब बैठे हैं, अल्लामा मोहम्मद हुसैन जो है कि नूरी साहब बैठे हैं, और जावेद अव्वल जावेद सानी और जो है कि हाफिज साहब बैठे हैं। तमाम तर लोग बैठे। एक बात समझ लें कि जो शख्स सरपरस्त होता है वो नहीं भी पढ़े तो बड़ा ही होता है। और देखें ये बैठे हैं और ये अपने ननिहाल में बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये अपने अब्बा के ससुराल में बैठे हैं। आप लोग में हैं, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, इसलिए कि बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा कुमला गए हैं, जानते हैं मामला कहाँ का है। जब आप मुस्कुराते हैं तो बड़ा काम हो जाता है, जानते हैं। ये देखें इनके चेहरे को देखें और बस एक बात समझ लें कि आता है मेरे जहन में ये ख्याल बराबर, इसलिए मैं करता हूँ सबसे ये सवाल बराबर, और बाहर के आए तो हुनरमंद हो गए क्या, घर की मुर्गी होती है दाल बराबर। मत समझिएगा, हमारे असलाफ का शजरा जाके करबला से मिलता है, राहे निजात का पता तो हबीबे खुदा से मिलता है। और हम झुकते हैं हजरत की तकदीर, और मेरा ये शेर सुने कि हम झुकते हैं ताज़ीमे नज़ीर, हम झुकते हैं ताज़ीमे नबी के लिए। तुझमें है अनानियत तेरा शजरा कहाँ से मिलता है। हम झुकते हैं ताज़ीमे नबी के लिए, हम झुकते हैं ताज़ीमे नबी के लिए। तुझमें है अनानियत तेरा शजरा कहाँ से मिलता है। आए नारा लगा ले भाई तौसीफ रजा बानवी से आप मुलाकात कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे मुस्तफा, जश्न आमदे मुस्तफा, उल्फते सरकार हम न छोड़ेंगे, या नबी तेरा दरबार हम न छोड़ेंगे। और मुझसे बुझहर ने कंकड़ियों ने यूं कहा, कैद में भी गलबे का इकरार हम न छोड़ेंगे। तुम खुद ही पेशवा हो जाओगे। भाई साहब शबनम तो नहीं गिर रही है, वो जबलपुर के हैं शबनम साहब। आप लोग बोले ताजा हो भाई, अभी तो बहुत कुछ करना है आप लोगों को कि तुम अपने लफ्जों के खुद ही पेशवा हो जाओगे। अगर सच बोलोगे तो सादिक बाखुदा हो जाओगे। और अरे बाबू काहे काल पे हाथ रख के बैठा है, सुभान अल्लाह बोला, सुभान अल्लाह। किसको देख रहा है, तुझी से बोल रहा हूँ। तो सब हादसा तो कोई नहीं हुआ है, थोड़ा सा ताजा हो कि तुम अपने लफ्जों के पेशवा खुद ही हो जाओगे। अगर तुम सच बोलोगे सादिक बाखुदा हो जाओगे। तुम आलिम फाजिल फकीह मुफ्ती बनो, इज्जत मिलेगी जब तुम गुलामे मुस्तफा हो जाओगे। इज्जत मिलेगी जब तुम गुलामे मुस्तफा हो जाओगे। मैं बिल्कुल इस वक्त जो है कि आपके सामने बिल्कुल वैसे ही खड़ा हूँ जैसे सीटी लेने के बाद ट्रेन खड़ी रहती है स्टेशन पे, भागने की तैयारी में है। जावेद सानी साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अब अच्छा खासा बोलने वाला माइक आ गया है। मुझको इस वक्त जो है कि ऐसे ही आप लोग भी टुकटुकी लगाए हुए नजरों से देख रहे हैं, जैसे हर मस्जिद का सिगरेटी सदर अपने इमाम को देखा करता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी खैरियत जो है बिगड़ जाए, मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं और बस नारा लगा लूं, आप लोग जवाब दे ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे मुस्तफा, जश्न आमदे मुस्तफा। लेके झंडा जमीन पर रूहुल अमीन आ गए, लेके झंडा जमीन पर रूहुल अमीन आ गए, और चूमने मुकद्दस मक्के की जमीन आ गए, चूमने मुकद्दस मक्के की जमीन आ गए। अब न होगी हम तलफी किसी की, इसलिए कि जमीन पे सादिकुल अमीन आ गए। बयानी का अच्छा ताल्लुक रखता है। मैं आखिरी बार आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, जितने लोग हैं जल्दी जल्दी आ जाएं, इसलिए कि आखिरी बार आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। और आप लोग, मैं जानता हूँ कि जब आदमी आखिरी बार मुलाकात करता है तो खूब अच्छे से लोग मजमा पूरा उठ के आता है और मुलाकात करते हैं। कब?
कब्र में जाने के बाद उसी वक्त लोग पूरा एकदम देखते हैं कि आखिरी बार है, इसके बाद न पूछेगा, अच्छे से देख लो। इसलिए आप लोग जिंदा रहें। मैं चाहता हूं कि जिंदा दिल रहें। जिसका हर एक काम जिंदा है वो नबी का गुलाम जिंदा है, और इसके सरकार के वसीले से आला हजरत का नाम जिंदा है, आला हजरत का नाम जिंदा है। मेरी माँ बहनें वहाँ बैठी हैं। मैं अपने बहनों को 4 शेर जावेद सिद्दीकी का नजर कर रहा हूँ कि बहन यहाँ से मुझे थोड़ी सी इमदाद मिल जाए। अगर नजराना नहीं है तो सिर्फ भीख दे दे, सुभान अल्लाह कहते। मैं चाहता हूँ कि बहनों को देंगी और भी तस्कीन चूड़ियाँ। अरे हमारी भी बहनें हैं, बोलिए जोर से। बहनों को देंगी और भी तस्कीन चूड़ियाँ, पहनेंगी जो पढ़ के सूरह यासीन चूड़ियाँ, और पहनेंगी जो पढ़ के सूरह यासीन चूड़ियाँ। खदीजा को जब रहमते आलम ने अपना बना लिया, खदीजा को जब रहमते आलम ने अपना बना लिया, फिर हो गई खदीजा की रंगीन चूड़ियाँ, फिर हो गई खदीजा की रंगीन चूड़ियाँ। और एक शेर देखे कि जब भी दुआ को हाथ उठाती थी फातिमा ज़हरा, जब भी दुआ को हाथ उठाती थी फातिमा ज़हरा, कहती थी झूम झूम के आमीन चूड़ियाँ, कहती थी झूम झूम के आमीन चूड़ियाँ, कहती थी झूम झूम के आमीन चूड़ियाँ। मतलब भाई साहब को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। मेरा तो कुछ नहीं खाता है, मेरा तो बहुत खाता है। अल्लाह दो चार ऐसे मस्तान और गांव में रखे, और जिस गांव में रखे अल्लाह वहाँ मुझे को भेजे। आप बेदार हैं इसलिए कि आपको मोहम्मद हुसैन नूरी साहब के खिताब सुनना है। जानते हैं मोहम्मद हुसैन जो है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा खतीब हुआ करता था जिसको अबुल हक्कानी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस शख्स की जबान में अबुल हक्कानी की वो तकरीर के लज्जतें मुयस्सर करेंगे आप लोग। और इस शख्स की जबान से जब अहादीस मुस्तफ़ा सुनेंगे तो आपको अल्लामा अबुल हक्कानी साहब की याद आ जाएगी। मैं एक शेर अपने बहनों के नज़र कर रहा हूँ और बहनों के भाइयों से कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ सुभान अल्लाह बोलेंगे कि खुदा की रहमत है बेटियाँ, ये बात नहीं मिटने वाली। आज हमारा कैसा पुरपतन दौर आ गया है कि हमारी बहनें जो हैं सर पे दुपट्टा रखने से आर महसूस करती हैं, कहती हैं जो है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं। देखिए कहाँ कंफर्टेबल हैं। हम बता रहे हैं कि खुदा की रहमत है बेटियाँ, ये बात नहीं मिटने वाली, किसी के घटाने से इनकी शान नहीं घटने वाली। और खुदा ने बेटियों को वो एजाज बख्शी अशरफी, किसी के घटाने से इनकी शान नहीं घटने वाली, किसी के घटाने से इनकी शान नहीं घटने वाली, और किसी के घटाने से इनकी शान नहीं घटने वाली। बगैर दुपट्टे के तो उरियानियत ही फैलती है, खूबसूरत लगती हैं बेटियां दुपट्टे वाली। बगैर दुपट्टे के तो उरियानियत ही फैलती है, खूबसूरत लगती हैं बेटियां दुपट्टे वाली। एक शेर देखें, पापा की परी। बाबू सोना सुन लिए तो पापा की परी भी बर्दाश्त करें, बहुत मजा आएगा आपको। सिर्फ सुभान अल्लाह की सदाओं में सुनेंगे, बहुत जो है कि गहराई तक पहुंचेंगे आप। खुदा ने बेटियों को वो एजाज बख्शा है अशरफी, बन के रहमत मोतियों की लड़ियों की तरह रहती है। आप सिर्फ लड़ देखें और जुड़ाई देखें, कहाँ कहाँ टाका दिया गया ये देखें कि बन के रहमत मोतियों की लड़ियों की तरह रहती हैं, घर में जुड़ के सबसे नरियों की तरह रहती है। और खुदा ने बेटियों को वो एजाज बख्शा है अशरफी, खुदा ने बेटियों को वो एजाज बख्शा है अशरफी, घर के आंगन में पापा की परियों की तरह रहती हैं। घर के आंगन में कब बोलेंगे, कब बोलेंगे आप? 29 तारीख को मेरी शादी है, और उससे पहले अगर मेरा जनाजा उठ गया ना तो मैं अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लूंगा। मैं कह दूंगा मैं चौरा गया था, अल्लाह ही जाने मेरे साथ वहाँ के लोगों ने क्या किया। आप जोर से सुभान अल्लाह बोले, मेरा बहुत फायदा होने वाला है। अभी एक ही हाथ भरा है, मैं उस वक्त तक सोच रहा हूँ नहीं बैठूंगा जब तक दूसरा हाथ न भरे। बस आप लोग कसम न खाइएगा, मैं बैठने वाला हूँ। आप यहाँ से वहाँ तक मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लामा के मोहम्मद हुसैन नूरी साहब तबला आपके रूबरू होंगे। इस शख्स के आवाज में वो लज्जत है, वो जो है कि असरदार तकरीर है,
जब वो ज़कात पे तकरीर कर दे तो लोग ज़ारो ज़ार होने के बाद घर को जाए और ज़कात निकालने की कोशिशें करने लगते हैं। जब वो शख्स जो है कि मिलाद मुस्तफ़ा की अहमियत बताने लगे तो लोग अपने बच्चों को ABCD बाद में पढ़ाते हैं, पहले इश्क़ मुस्तफ़ा उसकी गुट्टी में पिलाया करते हैं। इस शख्स की जो है पहचान ये है जो है कि उत्तर दिनाजपुर का वो बेबाक खतीब जो आपसे मुलाकात करने जा रहा है। मैं चाहता हूँ नारा लगा लें, इसलिए कि आप लोग भी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये माइक जब मौलवियों को बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये कौम कितने देर तक बर्दाश्त करेगी। मैं शेर पढ़ लूं के चिरागे उल्फत व मोहब्बत हम हर सू जलाने वाले हैं। चिरागे उल्फत व मोहब्बत हम हर सू जलाने वाले हैं, जुल्म के आंधियों को हम आग दिखाने वाले हैं। मैं खुश हूं कि मरकर मेरी ईद होगी, मेरे कब्र में जो सरकार तशरीफ लाने वाले हैं, मेरे कब्र में जो सरकार तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ से वहाँ तक मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ सभी इमाम बैठे हैं। मैं चाहता हूँ एक शेर इमाम के ताल्लुक से सुन लें, उसके बाद जो है कि मोहम्मद हुसैन नूरी साहब किबला आपके रूबरू होंगे और आप सभी उनके रूबरू होंगे। मेरी जगह मेरा इंतजार कर रही है। आप लोग मैंने जहाँ कहा था मैं अभी तक वही हाथ दिखा रहा हूँ जो अभी तक खुला है। मैं हजरत मोहतरम में शेर पढ़ा था, दो लोग सुभान अल्लाह बोले, दो लोग सुभान अल्लाह, बिल्कुल जाग जाए। अच्छा एक मरतबा ऐसा हुआ कि खतीब साहब तकरीर कर रहे थे तो उनकी बीवी ने कहा कि मेरी तकरीर सुनने के बाद लोग जो है कि बेदार बहुत रहते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग उठ के चले जाते हैं। कहा कि आप एक ही जुमले को बार बार दोहराते हैं, ये ऐसा होता है। तो बीवी ने कहा कि आप एक ही जुमले को बार बार दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नाअहल टाइप के लोग होते हैं, मैं उनको एक ही बात बार बार दोहराता हूँ कि समझ लें। बीवी ने कहा आप जो है कि नाअहल लोगों को एक ही बात समझाने की कोशिश करते हैं जब तक समझदार लोग उठ के चले जाते हैं। तो सभी समझदार लोग हैं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, इसलिए कि आप लोग अपने फायदे के लिए बैठे हैं, मिलाद मुस्तफ़ा में बैठे हैं। आज वो शब्द जितना जाग लें उतना ही कम है। आज मिलाद मुस्तफ़ा में बैठे हैं, आप इतने खुशनसीब हैं कि वहाँ आप बैठे हैं, यहाँ नाइबीन मुस्तफ़ा बैठे हैं। मैं इमाम पे शेर पढ़ रहा था कि वो शख्स मेरी नजरों में लायक एहतराम नहीं जो पढ़ता नबी पे दुरूदो सलाम नहीं। वो शख्स मेरी नजरों में लायक एहतराम नहीं जो पढ़ता नबी पे दुरूदो सलाम नहीं। नहीं बोलेंगे? वो शख्स मेरी नजरों में लायक एहतराम नहीं जो पढ़ता नबी पे दुरूदो सलाम नहीं। ये वारिसुल अंबिया हैं तो कद्र किया करो इनके, ये इमाम है किसी के गुलाम नहीं, ये इमाम है किसी के गुलाम नहीं। नारा लगाए, नारे तकबीर। बाबू थोड़ा सा आप लोग भी बेदार हो जाएं। मैं इस माइक से ज्यादा बोल सकता हूँ, अगर आप लोग साथ दें। वो नहीं उड़ेगा, अल्लाह ना करे कि वो उड़े। नारे तकबीर, रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे मुस्तफा, जश्न आमदे मुस्तफा, जश्न आमदे मुस्तफा, चौरा का जिंदा दिल मुसलमान। बड़ा ही गहरा ताल्लुक है कि गर दिल में इश्क नबी ना हो तो तीरों से क्या होगा, गर दिल में इश्क नबी ना हो तो गर दिल में इश्क नबी ना हो तो जंजीरों से क्या होगा, दिल में खौफे खुदा ना हो तो जंजीरों से क्या होगा, निशाना गर सही ना हो तो फिर तीरों से क्या होगा। और बड़ा ही गहरा ताल्लुक है आलिम का हक बयान से, ये कौम ना सुधरे तो तकरीरों से क्या होगा। सानी साहब आपसे मुलाकात करेंगे। शख्स का हुनर ये है कि जितना लंबा बाल रखा है उससे ज्यादा नाते नबी तान के पढ़ा करता है। ये इस शख्स की अपनी पहचान है, अपने कदो कामत के हिसाब से कहीं ज्यादा ऊंचा शेर पढ़ा करता है। और इसकी अपनी कोई आपको देखें, मैं अगर कोई बात मेरी किसी को लग जाए तो माफ करेंगे। किसी भी शख्स की अपनी कोई पहचान नहीं है, किसी का अपना कुछ वजूद नहीं है। ये सिर्फ नाते मुस्तफ़ा और अहादीसे मुस्तफ़ा
पढ़ने सुनने सुनाने का सदका है जो सबों की पहचान बनी हुई है। इसी पहचान को जो है कि हम दीवाने मुस्तफा अपने इश्क में सजा करके अपने दिल में बसा करके लोगों को पेश किया करते हैं। आप देखें, एक छोटी बात और बड़ी बात समझ ले कि कोई शायर जब माइक पे आता है तो अपनी बात नहीं, अपना कलेजा पेश करता है। आप उसके कलेजे को जो है कि कबूल करें और आप दादो तहसीन से नवाजें, इसलिए कि आपका दादो तहसीन नवाजना ही उसके लिए कामयाबो कामरानी दलील है। मैं नारा लगाता हूँ, आप लोग जवाब दे ले और भाई जावेद सानी अब मुलाकात करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने आमदे मुस्तफा, जश्ने आमदे मुस्तफा। दरे सरकार से आने वाले पागल की तरह अब सालू तुझे इन आंखों में काजल की तरह, और बज़्मे सरकार सजी है चले आओ जावे बादब नाथ करो अजमनो बेकल। हम उनकी अजमत क्या बयां करें, जिनकी तौकीर सरदारे मलाइका करे। जानना होगर मकामे महबूबे दो आलम, मशवरा है कि कुरान पढ़ा करें, मशवरा है कि कुरान पढ़ा करें, मशवरा है कि कुरान पढ़ा करें। और एक शेर देख लें, ये ईद मिलादुन नबी है। मिट गई जमीन, मिट गई जुल्मत जमी से जब रब के दिलदार आ गए। लोग बोलते सुभान अल्लाह। मैं आपको देखिए, आपकी तारीफ तो मैं इतना कर दूं कि मैं आपको जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दूं, मगर मैं सोचता हूं कि वहां से गिरने के बाद क्या होगा। आप जहां हैं वही बड़े अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बस मुस्कुराते रहें। जानते हैं क्यों? कि दिलों में इश्क नबी सजाया करो, खुद को हासिदो हसद से बचाया करो, और मुसीबतों का काम है आना जाना दोस्त, हमेशा मुस्कुराया करो। मेरा खाता कब खुलेगा? मैं आया था तो हजरत, ये मतलब ये सारा आप ही का है या नाना का है? मैं पहले कंफर्म कर ले रहा हूँ, अगर इनका हो तो, वरना नाना का धन तो मैं भी बहुत लुटाया हूँ। अलग बात है कि अब नहीं लुटा पा रहा हूँ। मैं शेर पढ़ रहा था, मैं चाहता हूँ कि आपके होठों को तबस्सुम छू जाए, आप मुस्कुराते रहें, और मुस्कुराते हुए आप जितने अच्छे लगते हैं। और देखें, आप अपने हाथों को, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि जेबों से दूर रखें। पता नहीं मैं कब कौन सा अच्छा शेर पढ़ दूँ, आप हाथ निकाले, जोश में 10 का नोट निकल जाए। इसलिए आप तैयार रहें, बहुत जरूरी है आपका तैयार रहना। जुल्मत जमी से मिट गई जब रब के दिलदार आ गए, जुल्मत जमी से मिट गई जब रब के दिलदार आ गए। बन के रहमत, बन के रहमत, बन के रहमत सारे जहां के लिए मेरे सरकार आ गए, बन के रहमत सारे जहां के लिए मेरे सरकार आ गए, बन के रहमत सारे जहां के लिए मेरे सरकार आ गए। और कहा हलीमा ने, कहा हलीमा ने, बीमारों आओ चलो शिफा ले लो, कहा बीमार, कहा हलीमा ने, बीमारों आओ चलो शिफा ले लो। घर मेरे, घर मेरे नादार, घर मेरे, घर मेरे, घर मेरे। आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, देखिए ये होगा मेरे साथ। बन के रहमत, बन के रहमत, बन के रहमत, जुल्मत जमी से मिटने लगी जब रब के दिलदार आ गए, जुल्मत जमी से मिटने लगी जब रब के दिलदार आ गए। बन के रहमत सारे जहां के लिए हबीबे परवरदिगार आ गए, बन के रहमत सारे जहां के लिए हबीबे परवरदिगार आ गए। कहा हलीमा ने, कहा हलीमा ने, बीमारों आओ चलो शिफा ले लो, कहा हलीमा ने, बीमारों आओ चलो शिफा ले लो। घर मेरे मसीहाए बेकसो नादार आ गए, घर मेरे मसीहाए बेकसो नादार आ गए, घर मेरे। बस 2-4 लोग ऐसे याद है ताकि मैं अगला शेर जो भूल रहा था वो मैं मुकम्मल कर लूं। आप लोग मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कि इस दौर में आपका मुस्कुराना इतना ही जरूरी है
जितना जरूरी वैक्सीन लगवाना था। जानते हैं ये वैक्सीन जो है कि मैंने भी एक वैक्सीन बनाई थी। वो अलग बात है कि उस वैक्सीन को मैं सबको नहीं दे सकता, मगर कहीं कहीं जरूर दे सकता हूँ कि रब को जो पसंद है सिर्फ वही दीन चाहिए। रब को जो पसंद है सिर्फ वही दीन चाहिए। रब को जो पसंद है सिर्फ वही दीन चाहिए। दीवानों को तो करबला की जमीन चाहिए और बदअकीदे फैला रहे हैं गुमराही कोरोना की तरह, इनको भी नामे अहमद रजा का वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन चाहिए। अच्छा, ये बड़ी कमाल की बात है कि दावत भी मौलाना इलियास साहब ही दे, नजराना भी मौलाना इलियास साहब दे, तो आप लोग काय के लिए भाई साहब बैठे हैं? आप लोग भी कुछ कीजिए, उससे अच्छा काम मैं बता रहा हूँ करेंगे। बस मैं जब शेर पढ़ूं आप लोग सुभान अल्लाह बोलते रहे, इसलिए कि आपका होंठ हिलेगा और आपके नामा अमाल में नेकियों का जखीरा जमा होगा। मैं चाहता हूँ हंसते खेलते जो है कि ये मोहब्बत का सफर कुछ लंबा तय हो, इसलिए कि आज की वो शब है जिस शब में आज हम बैठे हैं, अपने मुकद्दर को चमकाने बैठे हैं, खुद को गुनाहों से बचाने बैठे हैं। आज ही की वो शब है जिस शब में मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। अपना अहला गैरा नत्तू खैरा का बर्थडे तो सभी मनाते हैं, आओ आज नबी का जन्मदिन मनाया जाए, नबी के विलादत का जो है कि चर्चा किया जाए, चरागा किया जाए। हम अपने घरों को सजाए हैं, अपने दिलों को सजाएं। मैं चाहता हूं कि इस वक्त ये जीता जागता मजमा है, इस मजमे में बड़े बेदार लोग बैठे हैं और इस मजमे के लोग जो है कि बड़े होशियार भी बैठे हैं, कभी कभी सुभान अल्लाह बोलते हैं। मैं ऐसे शख्स को दावते सुखन देना चाहता हूँ जो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का हुनर जानता है, जिसकी खासियत ये है कि बहुत दिन से वो नाते नबी पढ़ रहा है। जब वो दुनिया शायरी में अपने कदम को जमाना चाहा तो लोगों ने कहा कि ये देखो एक नबी का मतवाला आया है जो नबी के इश्क में जो है कि नाते नबी पढ़ा करता है। उसकी खासियत बस एक समझ ले कि उसकी खासियत ये है कि जब वो जंगलों में नाते नबी पढ़ता है तो चिड़िए चहचहाना बंद करके सिर्फ नाते नबी सुना करते हैं। जब वो दरिया की सहरानियों पे नाते नबी पढ़ता है तो जो है कि मछलियां किनारे से आकर के लग के नाते नबी सुना करती हैं। जैसे मेरी मुराद भाई तौसीफ रजा बांधवी हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसा शायर है, तो आए आप मुलाकात करें। अच्छा, एक बात समझ लें, मैं अली जनाब जो है कि जावेद अख्तर साहब का नाम नहीं ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके अल्लाह का शुक्र है, इनके आवाज में अल्लाह ने इतनी तवानाई बख्शी है जितनी मेरी जिंदगी जो है कि इतने उम्र होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक जवान हुआ हूँ। अल्लाह ने इनकी आवाज में इतनी जवानी बख्शी है। जब ये बंदा नाते नबी पढ़ता है या अहादीस मुस्तफा बड़े टाप का पढ़ा करता है, अल्लाह ने बहुत ट्यून दी इसकी आवाज में। मैं दुआ करता हूँ कि इनके आवाज को, इनकी जिंदगी को, इनके अहलो अयाल को और ये जितने बैठे हैं सबके अहबाब को अल्लाह सलामत रखना। आप लोग बोला करें, बस अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, आप बड़े अच्छे लोग हैं। मैं नारा लगाना चाहता हूं, अगर आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं तो मैं देखें कि मैं शेर पढ़ूं कि उस शख्स को बख्शिश के सफीने से अलग रखा है। अगर दिल को लग जाए शेर, आखिरी शेर, तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। हजरत मैं यहाँ से ज्यादा जो है कि तवज्जो का उम्मीद रखता हूँ, इसलिए कि एक मर्तबा जो है कि एक मुशायरा सजाया गया, एक नेताजी को बुला दिया गया और जो है कि जो भी शायर आता था कहता था नेताजी तवज्जो चाहता हूँ। नेताजी अपने चपरासी से 500 का नोट भेज देते थे। आखिर में मुझे ऐसा शायर खड़ा हुआ और जो है कि उन्होंने कहा कि नेताजी तवज्जो चाहता हूँ, तो नेताजी दोनों जेब निकाल के कहे कि अब तवज्जो तो खत्म हो गया है, मुझे इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार हैं? उस शख्स को बख्शिश के सफीने से अलग रखा है जिसने भी उस शख्स को बख्शिश के सफीने से अलग रखा है जिसने भी मोहम्मद की मोहब्बत को सीने से अलग रखा है। और इश्क में बढ़ जाती है बेताबियां तभी तो काबे को मदीने से अलग रखा है। इश्क में बढ़ जाती है बेताबियां तभी तो काबे को
मदीने से अलग रखा है। मेरी माँ बहनें वहां बैठी हैं, मैं यहाँ हूँ। आप जानते हैं माँ बहनों का क्या मकाम है कि क्या है माँ की ममता आंचल दुनिया को बता ले। नहीं बोलेंगे क्या है माँ की ममता आंचल दुनिया को बता ले। छू नहीं सकती मुसीबत माँ जो आंचल में छुपा ले, छू नहीं सकती मुसीबत माँ जो आंचल में छुपा ले। और रख के सर मैंने कांधे पे कहा माँ हटाएगी कब कब कब। कहा माँ ने दुनिया जब तक मुझे कांधे पे ना उठा ले, दुनिया जब तक मुझे कांधे पे ना उठा ले। कहा माँ ने मुझे दुनिया जब तक कांधे पे ना उठा ले, कहा माँ ने मुझे जब तक दुनिया कांधे पे ना उठा ले, कहा माँ ने जब तक मुझे दुनिया कांधे पे ना उठा ले। मैं ऐसा ऐसा शेर पढ़ सकता हूँ, आपने जो है कि सुना, आपका शुक्रिया। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे यहाँ खड़ा होने से ज्यादा अच्छा यहाँ लगूंगा, इसलिए कि नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का ये शख्स हुनर जानता है। इसके आवाज में इतने जो है कि कशिश है कि अगर वो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के दहाने पे पढ़ने लगे तो इसके आवाज के रस्सियों के सहारे डूबने वाला बाहर निकल सकता है, अगर इश्क़े नबी सीने में हो तब। मैं नारा लगाता हूँ, आप जवाब दे ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने आमदे मुस्तफा, जश्ने आमदे मुस्तफा, जश्ने आमदे मुस्तफा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह आप बेदार रहें। क्या जरूरी है कि गैरों को ही तलकीन करें। हजरात मोहतरम जानते हैं कभी कभी मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। मैं कि शेर को 2-3 मरतबा पढ़ लेता हूँ या मैं शेर ही भूल जाता हूँ। तुझे मजाल जो चाहे फैसला कर दे उम्र कैद की सौगात या फिर रिहा कर दे। तेरी ज़बान पे कर वबूर हासिल है, एक लफ्ज़ मोहम्मद का तर्जुमा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुक़्तदर मुअज़्ज़म बवकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया और चौरा के जिंदा दिल सुन्नी जियाले मुसलमान, फ़कीर अशरफी को सलाम मुहब्बत से कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ और मुझे नहीं लगता कि चौरा की पूरी आबादी इतनी ही है जितना यहाँ है। तो जो लोग अपने घरों में अपने ऊपर बिस्तर को लपेटे हुए समेटे हुए हैं, मैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि प्यारे, आज मौका है, आज वो दिन है जिस दिन फरिश्ते जमीन पे उतरे आए। आज सरकार के विलादत का दिन है और इसी दिन में जिब्रील अमीन अर्शे बरी को छोड़ के मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमी पे आए और झंडा गाड़ा और जो है कि पूरे अरबो अजम को खुशखबरी सुनाई। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि चौरा के बेहतरीन सुनने वाले लोग, अरे माशाअल्लाह कुछ लोगों ने मेरी आवाज सुन ली है। मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह जो लोग जिन लोगों तक अब तक मेरी आवाज न पहुंची है, या अल्लाह मेरी आवाज उन तक पहुंचा दे या फिर मेरी खबर उन तक पहुंचा दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं यहाँ से शुरू होने जा रहा हूँ। खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनोदस्त दामाले आले रसूल। इमदाद कुन अज़वन दगम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगी। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तु पुश्ती। बहक के ख्वाजा उस्माने हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। अशरफ़े ज़माना ज़मानाए मदद नुमा
در ہائے بستہ رازے کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں خدایا بحرمت ارواحیم بیا مدد پے محمد و محمود و مصطفیٰ مدد برائے پنجتنے پاک چار یانے نبی ہما ارواح اولیاء مدد. اب میں یہاں سے شروع ہونے جا رہا ہوں. روح زمین پہ سب سے پہلے جو نبی کے استقبال میں شعر پڑھا گیا جب آقا دو عالم مکہ کو چھوڑ کے ہجرت کیے اور مدینے کی سرزمین پہ پہنچے تو مدینے کی عورتوں نے مدینے کی لڑکیوں نے مدینے کے پورے مدینے والوں نے کہا تھا وہ شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے دل کو لگ جائے تو یہاں سے وہاں تک مجھے سبحان اللہ سے نوازیں گے میرا کام ہو جائے گا. میں شعر پڑھ رہا ہوں. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعر نہ سمجھ میں آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شعر نہیں ہے. حضرات ایک بات سمجھ لیں کہ شعر شعر ہی ہوتا ہے چاہے شاعری کا ہو چاہے جنگل کا ہو وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنی سماعت کو جو ہے کہ بالکل تر و تازہ رکھیں. میں آپ کے شعور و فکر کی جنگل میں ایک شعر چھوڑنے جا رہا ہوں اور دیکھیں کہاں کہاں گشت کرتا ہے وہ شعر. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدار اللہ دائی وجب الشکر علینا مدار اللہ دائی. اچھا یہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا تھا میں اسے تھوڑا سا کم کر رہا ہوں. ایک شعر ہے کہ اسی بڑے آستا کے ہم بھی ہیں بھکاری. یہاں سے تھوڑی سی مجھے محبت چاہیے کہ اسی بڑے آستا کے ہم بھی ہیں بھکاری جسے دیکھ کے پجاری نہ رہ سکے پجاری. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ڈیزل انجن ہوں. اس عمر میں بھی ڈیزل ہی انجن ہوں ابھی تک. میں تھوڑا گرم ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. آپ صرف گرما دیجئے چاہے نوٹ نہ دیجئے مگر داد ضرور دیجئے گا. اسی بڑے آستا کے ہم بھی ہیں بھکاری جسے دیکھ کے پجاری نہ رہ سکے پجاری. اسی بڑے آستا کے ہم بھی ہیں بھکاری جسے دیکھ کے پجاری نہ رہ سکے پجاری. ایک میں ہی کیا کہتی ہے یہ دنیا ساری حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیداداری اچھے دارن ہما خوبا تتو تنہا داری اچھے دارن ہما خوبا تتو تنہا داری. حضرات محترم میں اعلیٰ حضرت کی زمین سے ایک شعر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اس وقت تک آپ کے سامنے کسی شاعر کو کسی مدحخان مصطفیٰ کو نہیں آنے دوں گا جب تک مجھے میسر نہ ہو جائے. اچھا ایک بات اور آپ نہ سمجھ لیں کہ میں بڑے بھائی نے بہت محنت کی ماشاءاللہ. اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے ان کے علم کو اور جو ہے کہ بام عروج پہ رکھے. آپ لوگ آمین بولیں گے؟ بولا کریں اس لیے کہ یہ قوم نہیں بولنے کی وجہ سے ہی بہت جو ہے کہ پستیوں میں جا رہی ہے. میں اعلیٰ حضرت کی زمین پہ آپ کو لے کے چل رہا ہوں. ظلمت زمین سے مٹا دینے والے گردوں کو سہارے سے اٹھا دینے والے بھٹکوں کو راہ خدا کا پتہ دینے والے چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. محترم حضرات میں ایک مرتبہ آپ کے تازگی کے لیے میں چاہتا ہوں میرے پاس بڑے جو ہے کہ ہنرمند لوگ ہیں یہاں ہنر کا خزانہ ہے. جاوید صاحب بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے. ادھر آپ کے علامہ الیاس مرکزی صاحب ہیں. توصیف رضا باندھوی یہ اتنا اچھا شاعر ہے جتنا خوبصورت یہ نہیں ہے اس سے خوبصورت پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خوبصورت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسے خوبصورت بنایا ہی ہے. دنیا کا ہر انسان خوبصورت ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حضرات محترم میرے پاس بھائی شب اختر جیسے شاعر ہیں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میں ان سے استفادہ حاصل کروں میں ان کو آپ کے روبرو لاؤں اور دنیا آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. ایک جو ہے کہ اسٹینڈ لگایا جاتا ہے
सामने से एक शख्स आता है और वीडियो बनाता है, पता है किस लिए? खुद को फेमस करने के लिए, खुद को अशहर बनाने के लिए, खुद को मशहूर करने के लिए इंस्टाग्राम पे डाला जाता है, टिकटॉक वीडियो बनाए जाते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए से दुनिया में अपनी उरियानियत को फैलाया जाता है। मगर खुदा का करोड़ों दर्जा शुक्र है कि भाई शब अख्तर जैसे लोग यहाँ जलवा रहे, सिर्फ इसलिए कि मैं नाते नबी पढ़ूंगा और मशहूर हो जाऊंगा। ये दिल में अकीदा है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि क्या जरूरी है कि गैरों को ही तलकीन करें। देखिए ये माइक का मामला उसके जगह पे है, आप लोग सुन लेंगे, मैं अंधेरे में भी पढ़ लूंगा। जिंदा दिल हो के अंधेरे में सुन रहे हैं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंधेरे में भी सुनाने के कायल हूँ कि क्या जरूरी है कि गैरों को भी तलकीन करें, नात अपने भी बच्चे पढ़े ये ताकीद करें। क्या जरूरी है कि गैरों को ही तलकीन करें, नात अपने भी बच्चे पढ़े ये ताकीद करें। इस तरह मिल जाए शायरे नात का जमाने से खिताब, आइए हजरत हसन की तफसीर करें। जब हमारे बच्चे माशरे में नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद जो है कि लोगों के दुनिया के हुनर से अपने हुनर को तोलते हैं, तो आप जानते हैं कि आज नाते नबी पढ़ने वाला जितना मशहूर है, सिर्फ नात ही का सदका है कि लोग प्लेनों में सफर करते हैं। बड़ी बात नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, मेरी फहरिस्त में उससे बहुत सारे लोग हैं, मगर आप कहें तो मैं एक एक करके नाम गिनवा दूं। असद इकबाल वो वाहिद हिंदुस्तान का इकलौता शायर है जो जमीन पे कम हवा में ज्यादा रहता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे शायर हैं हमारे पास। आज जो है कि दिलकश रासवी साहब हैं, अजीजुल्लाह फैजी साहब हैं, गुलाम सरवर लोग हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ नात के सदक़े में, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के सदक़े में उन्हें जो है कि ज़मीन से आसमान तक बुलाया जाता है। हज़रत मुहतरम नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सदका है, वो एजाज है। नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला, आप जानते हैं नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले का इश्क मेरे इमाम से पूछा गया कि दिलों में इश्क नबी कैसे जगाया जाए। मेरे इमाम फरमाते हैं कि अच्छे कारी से कुरान सुना जाए। फरमाया गया फिर और क्या किया जाए? कहा अच्छे आवाज के मालिकान से नाते नबी सुना जाए। ये दिलों में इश्क नबी पैदा करने का हुनर है। और देखे दिलों में इश्क नबी पैदा करने का जो है कि ये हुनर है। इस तरीके से जो है कि नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा और सुना जाता है। कुछ लोग वाईफाई के चक्कर में बैठे हैं। मैं एक पासवर्ड दूंगा जिससे आप जो है कि रात भर मगन रहेंगे। अब ये ना सोचे कि मेरे बगल वाला तो वाईफाई में देख रहा है। देखें कभी कभी ऐसा माहौल होता है, एक लड़का जो है अपने ननिहाल में गया और बहुत खुशो-खुर्रम था, मगर देखा कि उसके वालिद जो है कुर्सी पे चुपचाप बैठे हुए थे। लड़के ने कहा अब्बू जान मैं इतना खुश हूँ, अपने मामू के घर आया हूँ, आप क्यों इतने उदास हैं? कहा बेटा ये वक्त तुझे जब तेरी उम्र 25 साल की हो जाएगी तुझे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जब तेरे बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे और तू ससुराल में बैठा होगा। मैं ज्यादा बड़ी बात न करूंगा। हजरात मोहतरम मैं चाहता हूँ कि आप मुस्कुराएं, इसलिए कि मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। जानते हैं क्यों मुस्कुराना चाहिए? इसलिए कि मुस्कुराने से हमारा बेड़ा पार होता है। जानते हैं मुस्कुराना हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि मैं थक जाऊँ इससे पहले कि मैं एक नारा लगाता हूँ, आप लोग जवाब दे लें। भाई शब अख्तर साहब आपसे मुलाकात करेंगे। अरे नया चेहरा है, नई उम्र का लड़का है और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल निराले अंदाज में जो है कि नए तरीके से पढ़ेगा। हज़रात मोहतरम मैं नारा लगा रहा हूँ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, जश्ने आमदे मुस्तफ़ा जिंदाबाद, जश्ने आमदे मुस्तफ़ा जिंदाबाद,
सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद चौरा का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। क्या जरूरी है कि गैरों को ही तलकीन करें? क्या जरूरी है कि गैरों को ही तलकीन करें? नात अपने भी बच्चे पढ़े ये ताकीद करें, इस तरह मिल जाए शायरे नात का जमाने से खिताब। आइए हजरत हसन की तकलीफ करें।